Good morning, all of you. I hope you are fine and doing well. So, dear students, today we are moving ahead in a new term, okay, second sem, and our subject is social science. So, today we will learn, okay, about social science, and we will start the first chapter of this textbook. So, I hope you all have a textbook of second semester of access means social science, and you can see the title of the sessions, that is medieval Gujarat. Okay, so as you know, in social science we are actually knowing or getting some information regarding the society, how the society was living, okay, before this era, and how the people are living, what they are habitated, and about what they are actually like and dislike. Okay, we will see, okay, all these things in social science. We will find all these things in social science. How the people in which god they believe, okay, or which was the king at that particular time was ruling, and during that time what that king has done good for the welfare for the people or for the society or for the kingdom. So all these things you will come to know about through this social science, and it is a vast huge subject. So today we are going to learn first chapter, means first lessons of this subject. So you can see the title medieval Gujarat. सो हम जैसे कि हम स्टूडेंट जानते हैं कि बहुत सारे जो प्लेस है, ओके, गुजरात में बहुत सारे प्लेस है जो कई चीज़ों के बारे में बहुत ही फेमस है, ठीक है। सो वैसे कि अगर हम खंभात की बात करें, ठीक है, खंभात मैं आप सबको मालूम होगा उसके बारे में, खंभात, ठीक है, वो ऑर्किड के बारे में बहुत ही जाना जाता है, वो बहुत ही फेमस है। और अगर हम बात करें और भी कई यानी जामनगर बागनी के लिए बहुत ही फेमस है। सो हम सब इस बारे में बात करेंगे, देखेंगे। सो स्टूडेंट, आई विल रीड, जस्ट यू नीड टू लिसन मी वेरी केयरफुली एंड कीप योर टेक्स्ट विद यू सो दैट यू कैन सी द कंटेंट प्रॉपर्ली देयर आल्सो। मिडिल गुजरात, पटोला पाटन, ओके, तो पटोला पाटन, ओके। So there is a one song, okay, there is a one song regarding this Patola Patan, Patana Patola. Okay, there is a one song, and I hope you all have heard that song. Let me sing just two lines. छेला जी रे मारी हट पाटन थी पटोला मोगला जू, छेला जी रे मारी हट पाटन थी पटोला मोगला। So this is the song. It is connected to directly Patola, so which is very famous, and this song actually most Gujarati people like, okay, because it is connected to the Patola, and it is so expensive thing, okay, expensive, not a cheap thing, okay. If you wanna buy, you need more money, okay, it's so expensive. So I will read. A man above village street playing a song on his Ravanatha. A group of small children were also roaming along with him. So एक गांव था, उस गांव में एक मैन, ओके, a person who was roaming, यानी घूमना, स्ट्रीट देखते हैं ना, बहुत सारे लोग यानी बाहर से आते हैं अपनी रोटी यानी पेट के खाने के लिए, कि घूमते हैं, कुछ गाना गाते हैं, कोई अच्छी डांस करते हैं, ठीक है, नृत्य करते हैं। तो वो यहाँ पर जो लोग थे या ग्रुप था, वो सॉन्ग गाता गाता जाता था स्ट्रीट बाय स्ट्रीट, वन स्ट्रीट टू अनदर स्ट्रीट, एंड उनके साथ कई बच्चे भी थे। He continued to sing the same song repeatedly, the words of which were Chirajire Patanki Patola Mughalaja. Okay, I have already sing the song. Okay, so the same song they were singing, okay, by passing through the road, through the street, and all the people were looking there, okay, getting some enjoyment, because their voice were very actually excellent, so sweet. Among the children who sang along with the singer was Pratik. So जो बच्चे थे, उनके जो लोग बच्चे सब गाना गा रहे थे, उनमें से एक बच्चा था जिसका नाम था प्रतीक। When he returned home, he asked his grandfather about the Patola of Patan. जैसे ही वो घर पे जाता है, फिर पूछता है
उसके ग्रैंडफादर को इस पटोला के बारे में, क्योंकि उसे जानना है कि पटोला सही में है क्या, क्यों ये बहुत ही फेमस है, क्यों लोग इसे अच्छा, क्यों लोगों को ये अच्छा लगता है, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, वो उसे जाननी है। इसलिए वो पूछता है। ही इन्फॉर्म हिम अबाउट द हिस्टोरिकल सिटी अनहिलवाड़ पाटन। When he returned home, he asked his grandfather about the Patna Patan. Pratik's grandfather had a wealth of historical anecdotes. So जो प्रतीक के जो ग्रैंडफादर थे उसके उनके पास बहुत ही सारी हिस्टोरिकल फैक्ट्स के रिलेटेड नोट्स थे, ठीक है। While telling Pratik about Patola, he informed him about the historical city अनहिलवाड़ पाटन। जैसे कि वो पटोला के बारे में जब बात कर रहे थे प्रतीक से और प्रतीक को बता रहे थे, उस टाइम पर और उस समय के दौरान उन्होंने जो अनहिलवाड़ पाटन उस सिटी है उसके बारे में भी बताते हैं। क्या बताते हैं देखते हैं। इन द मिडिवल एज अप्रोक्सीमेटली फॉर अबाउट 560 years ago, the Chawla, the Solanki and the Waghela dynasties ruled over Gujarat. Okay, 560 okay 60 years ago, उस टाइम पर चावड़ा, वाघेला कि और सोलंकी ये तीनों वंशज जो थे डायनेस्टी वंशज, ठीक है, उनके वो लोग राज कर रहे थे गुजरात पर। उस टाइम की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग देयर रेन द कैपिटल ऑफ द किंगडम वाज अनहिलपुर पाटन विच लेटर केम टू नो। जब वो रूल कर रहे थे, ठीक है, ये तीनों, तब जो किंगडम का नेम क्या था, अनहिलपुर था। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, बाद में उसका नेम जो अनहिलपुर से दूसरा नेम रखा गया, दैट इज अनहिलवाड़ पाटन। Currently, Annawada village that is situated to the west of Patan was originally known as Anhilwad। ठीक है, फिर वो अनहिलवाड़ से ही जाना जाता है। According the historical text, the Chawla dynasty ruled over Panchasar। ओके, अगर हम टेक्स्ट की बात करें और हिस्टोरिकल जो टेक्स्ट है उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके आधार पर अगर हम बात करें तो जो चावड़ा डायनेस्टी थे उन्होंने पंचसर ओवर किया, यानी रूल कर रहे थे, ओके, वहाँ पर। एंड इट्स रूलर जय सिकरी, जो पंचसर था उन्होंने वहाँ रूल करके और हो गए। जो रूलर कौन था, तो जय सिकरी अटेन मैट्रोडी इन वॉर, और वो वॉर में यानी एक युद्ध में वो उनकी डेथ हो जाती है। एंड ही सन बलराम चावड़ा रिकैप्चर्ड हिज फादर्स किंगडम, और जो बलराम चावड़ा यानी जो राजा की डेथ हो गई उसका जो लड़का था बलराम चावड़ा, उसने लड़ाई की और वो जो किंगडम था वो रिकैप्चर किया, रिगेन किया, ओके, रिकवर किया, फिर से उसका नाम बनाया। इन प्लेस ऑफ रूइंड किंगडम ही एस्टैब्लिश्ड अ न्यू किंगडम ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सरस्वती। और जो किंगडम यानी जो रूइन हो गया था, ओके, फिर से उसने संभाल लिया और उसे फिर से एस्टैब्लिश किया, और बैंक्स ऑफ सरस्वती के किनारे, विच वॉज नोन एज अनहिलवाड़ पाटन, और वो किस नाम से जाना जाता था, अनहिलवाड़ पाटन। इट इज बिलीव्ड दैट हिज फ्रेंड अनहिल असिस्टेड हिम इन एक्वायरिंग द किंगडम एंड हैंस द टेरिटरी वाज नेम्ड अनहिलवाड़। ओके, और इस तरह से अनहिलवाड़ का नेम दिया गया। पाटन आफ्टर हिम द चावड़ा डायनेस्टी रूल्ड ओवर गुजरात फॉर अप्रॉक्सीमेटली 196 years। सो जो चावड़ा, ठीक है, डायनेस्टी थे उन्होंने कब तक राज किया, कितने ईयर तक, तो 196 ईयर तक राज किया। एंड देन आफ्टर सोलंकी डायनेस्टी रूल्ड ओवर गुजरात। उसके बाद सोलंकी जो डायनेस्टी थे वो आते हैं। इंस्क्रिप्शंस कव ऑन आइडल। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी गुजरात बिकेम वेरी प्रॉस्पेरियस एंड वेरी वेल्थी, वेरी रिच। ओके, सो जो सोलंकी वंश के यानी डायनेस्टी थे जब गुजरात पर रूल कर रहे थे, ओके, ऐसे की, सो गुजरात कैसा बन जाता है, बहुत ही प्रॉस्पेरियस, वेल्थी, रिच। द राजपूत एरा शो अनहिलवाड़ पाटन एमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम। और राजपूत एरा जो था उसके टाइम पर जो गुजरात को कैसा माना जाता था, बहुत ही पावरफुल किंगडम माना जाता था। द किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी मुलराज सोलंकी, भीमदेव सोलंकी, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल और अमोदी ग्रेट रूलर्स। और जो किंग्स ऑफ दिस रूलर, ओके, ग्रेट रूलर्स में किसके नाम दिए गए हैं उस टाइम पे सोलंकी, तो मुलराज सोलंकी, भीमदेव सोलंकी, सिद्धराज
Jayashree or Kumarpal were among the great rulers. They were the great rulers of the Solanki dynasty. The famous scholar, Sri Hemchandracharya was patronized during the rule of सिद्धराज जयसिंह। तो जो फेमस यानी बहुत ही फेमस स्कॉलर थे और उनका नाम क्या था, हेमचंद्राचार्य। और वो किसके टाइम पर थे, तो सिद्धराज जयसिंह के टाइम पर थे। और ड्यूरिंग हिज रेन और उसके जो राजा शाही के टाइम पर अनहिलवाड़ पाटन बिकेम द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन इन नोन एज विद्यानगर। और जो जयश्री सिद्धराज जयसिंह के टाइम पर वो जो अनहिलवाड़ था वो क्या बन जाता है, पाटन। वो अनहिलवाड़ पाटन क्या बन जाता है, सेंटर ऑफ एजुकेशन। इसके लिए उसका नेम भी रखा गया है, दैट इज विद्याधर। ऑन हिज प्रपोजल श्री हेमचंद्राचार्य ब्रॉट अ बुक ऑन ग्रामर। और ऑन हिज प्रपोजल यानी किसके प्रपोजल पर, वो सिद्धराज जयसिंह के प्रपोजल पर जो हेमचंद्राचार्य जी थे उन्होंने एक ग्रामर बुक लिखी, ओके, जिसका नाम था सिद्धेव शब्दानुशासन बुक, ओके, शब्दानुशासन बुक, सिद्धेव शब्दानुशासन बुक, जो ग्रामर की बुक थी, जिसका आविष्कार किसने किया था, यानी किसने कंपोज की थी, तो हेमचंद्राचार्य ने। किसके प्रपोजल पर, सिद्धराज जयसिंह के प्रपोजल पर। After its completion, the book was placed on the stage, tied on the elephant, and the processions were carried throughout the city. इतना ही नहीं, जब ये पुस्तक यानी जब ये बुक है वो एस्टैब्लिश यानी जब हुई, यानी रिटन हुई, कंपोज हुई, तो उसे एलिफेंट पर बिठाकर यानी उसकी सवारी एलिफेंट पर सभी जगह यानी इस स्टेट से उस स्टेट तक घुमाई गई, ठीक है। और इस टाइम पर पहली बार बुक को इतना रिस्पेक्ट मिला था, ओके, आदर सम्मान मिला था। और सिद्धराज जयसिंह एंड द कंपोजर श्री हेमचंद्राचार्य कंपनी, और जो सिद्धराज जयसिंह थे और हेमचंद्राचार्य जी थे वो अपने पाँव पर ही चलते, इस बुक की जो एलिफेंट पे रखी गई थी उस प्रोसेसन में चलते चलते जाते हैं। It was the first time that literary text was given such enormous respect. The prosperity of Gujarat reached its apex during the reign of Kumarpal. At this time, the amalgamations of non-violence. Okay, so इस जो ये बुक था यानी ये पुस्तक थी, उसका जो मेन इंटेंशन क्या था, उसमें क्या लिखा गया था, तो अहिंसा यानी प्रॉस्पेरिटी, लक्ष्मी यानी लक्ष्मी, एंड एजुकेशन यानी सरस्वती, उस पर एक भार दिया गया था। Was noticed in Anjipar pattern. The kings of Solanki dynasty were great rulers. However, 6 of these rulers renounced their thrones to become hermits. जो सोलंकी वंश, ठीक है, डायनेस्टी थे वो बहुत ही ग्रेट थे, बहुत ही अच्छे थे, लेकिन फिर भी कई जो सोलंकी थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो राजा यानी किंग से हटकर उन्हें सेंट बनना है, साधु बनना है। More information on this can be obtained from the library. और जो ये सभी इंफॉर्मेशन ली गई है, ओके, वो कहाँ से ली गई है, तो लाइब्रेरी में ये पुस्तक दी है, यानी ये जो बुक है, टेक्स्ट है, ठीक है, इसमें सभी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। और आप टेक्स्ट में भी उसका जो फोटो है, इमेज है, वो देख सकते हैं। अनिलवाड़ पाटन had not only dynamic kings and academicians, but the queens were also equally dynamic. इतना ही नहीं कि वो जो यानी अनिलवाड़ पाटन में सिर्फ मेल यानी किंग ही बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बहुत फेमस नहीं थे, लेकिन वहाँ की जो क्वीन थी वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ही ब्रेव थी, उन्होंने बहुत कुछ किया था। इनफैक्ट क्वीन उदयमती है बिल्ड अ स्टेप वेल फॉर द वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट, ओके। सो जो उदयमती है, ठीक है, उस टाइम पर की जो क्वीन थी उन्होंने जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए एक वेल बनवाया था। दिस स्टेप वेल इज नोन एज रानकी वाव, और उसे किस नाम से जाना जाता है, तो रानकी वाव के नाम से जाना जाता है। दिस स्टेप वेल कंसिस्टिंग ऑफ 7 लेवल्स इन अनपैरेलल्ड एग्जांपल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो उसके 7 स्टेप है और वो बहुत ही फेमस क्यों है, क्योंकि उसकी जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया हुआ है।
The beautifully curved stone idol stands us on the glory and prosperity of the Solanki era. जो beautiful curved stone है, जो आर्ट किया है, आर्किटेक्चर किया है, वो हमें सोलंकी एरा के बारे में और उसकी जो गरिमा है उसके बारे में बता रहा है। क्वीन मिनल देवी की सिद्रा जयसी मदर, ओके, जो क्वीन मिनल देवी है वो सिद्रा जयसी की मदर है, and was much concerned about the welfare of the subject and waived the pilgrim tax. वो टैक्स के बारे में, जो टैक्स भरा जाता था उसके बारे में बहुत कंसर्न थी, तो उन्होंने माफ कर दिया होगा, ठीक है, उस टाइम पर, और पब्लिक के वेलफेयर के बारे में सोचा होगा, क्योंकि एज ए क्वीन, ओके, शी मस्ट हैव टू थॉट अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल और द सोसाइटी हु आर एक्चुअली लिविंग इन दैट किंगडम। द मालो लेक एट धौलका एंड द मुनसर लेक एट विरमगाम। तो मालो लेक कहाँ पर है? धौलका में है, ओके, एंड मुनसर लेक एक विरमगाम में है। वह कंस्ट्रक्टेड ऑन हर इंस्ट्रक्शन। सो किसके इंस्ट्रक्शन के वजह से जो मालो लेक और मुनसर लेक बनाया गया है? तो मिनल देवी यानी सिद्रा जयसी की मदर की कहने पर। एंड द सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पाडर वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग सिद्रा जयसी। और जो सहस्त्रलिंग लेक है वो भी सिद्रा जयसी के टाइम पर, उस टाइम पर ही बनाया गया है। So dear students, I hope you understand everything, and remaining part of these lessons we will see later on.